बनमाली भी ज्वाइन हो गए। हाँ नमस्कार नमस्कार। चलो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या रघुनाथ कीर्ती देवप्रयाग परिसराचे संचालक माझे परम मित्र बनमाली विश्वाल यांचंही मी स्वागत करतो। आपल्या प्रतिभेनं परिश्रमांनी त्यांनी संस्कृत क्षेत्रात कवी म्हणून शास्त्राभ्यासक म्हणून स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलेलं आहे। संचालक झाल्यापासनं त्यांनी काही दिवसांमध्ये अनेक वेबिनार्स जे तर त्यांचं आयोजन केलं ते शास्त्र विषयावर असेल आणि अन्य विषयावर संस्कृत संबंधात त्यांनी केलेलं आहे। या त्या माध्यमातून अनेक विषयांची मांडणी त्यांनी केली आहे। आपल्या विद्यापीठाच्या अनेक उपक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग हा असतो। त्यांचे अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित झालेले आहेत। ही जे भाषण करण्याचे कालावधी अल्प असतानाही विभागावरील स्नेहानं विशेष व्याख्यानाचं निमंत्रण स्वीकारणाऱ्या सर्व व्याख्यातांचे मी आभार मानतो। As we all are aware that our keynote speaker Professor Biswal have handled various genres of literature with equal ease in translation. एवमेव उद्घाटन सत्रेस्मिन् बीजभाषणेन अस्मान् सर्वान् स्वाभ्यासपूर्णवचोभिः अनुगृहीतुं सौभाग्यवशात् सम्प्राप्ताः देवप्रयागस्थित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य मान्याः निदेशकाः नैक पुरस्कार पुरस्कृताः नैक ग्रंथ विरचनेन संस्कृत भाषा कवितल्लजतया विराजमानाः प्रथित कवयः आचार्याः बनमाली विस्वाल महोदयाः अत्र राराज्यन्ते। वितीर्य सम्प्रति अस्याः संगोष्ठ्याः बीजभाषणं कर्तुम् अस्मद् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र समुपस्थिताः सन्ति आचार्याः तत्र बनमाली विस्वाल महाभागाः। तेषां कृते सर्वेषां पक्षतः अहं हार्दं स्वागतं विधाय तत्र तेषां कृते नमस्कार पुरस्सरं अद्यतन बीजभाषणं प्रदातुं सम्प्रार्थये। आचार्याः बनमाली विस्वाल महाभागाः सम्प्रति बीजभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्ति। नमः सर्वेभ्यः। भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। First of all, I would like to thank the organizers, sir, in general, and my friend Professor Mule, the director CSS and HOD Sanskrit Department, University of Pune in particular, for inviting me and giving me an opportunity to deliver the keynote address in this national webinar on translation of Sanskrit literature, a review. I also thank Dr. Kaveri Jadhav, the coordinator of this national webinar, and Dr. Mugdha Gadgil, the coordinator DSPL, and Rasal ji, all from University of Pune. I welcome all other dignitaries present here, like Professor B.K. Dalai, Professor Jayanti Tripathi ji, former directors of CSS, and Professor Arunanjan Mishra, Professor Nirmala Kulkarni, and others. It is really an honor to deliver the keynote address in a national webinar being presided and inaugurated by Professor Srinivas Barkhedi ji, Vice Chancellor, Kavi Kulaguru, Kalidas Sanskrit University, Ramtek, Nagpur. I specially welcome him on this occasion. I welcome all other scholars who have joined to this national webinar online through Zoom Meet or live on Facebook or YouTube, etc. The topic is not only important but interesting for me because for years together I have engaged myself in translating several Sanskrit texts, ancient and modern, into Hindi, English and Odia. I have also translated the works of other languages into Sanskrit.
Till the date, several seminars have been organized by different institutions and universities on translated literature, and some of the proceedings have been published. Say, for example, one from Baroda, edited by Professor Ravindra Kumar Pandaji, and one from Calcutta, edited by Dr. Narayan Das. But those volumes deal with Sanskrit translations from other languages. Here we are concerned with the translation in other languages from Sanskrit. As the topic is very vast, it cannot be expected neither from me nor from any other speaker to present the complete scenario of translation of Sanskrit literature. So naturally, I am supposed to discuss about the status of translation of Sanskrit literature and the problems related to it. So first of all, let us know the history of translation, but of course, in the context of Sanskrit literature. A basic question arises, what is translation? Translation is the communication of the meaning of a source language text by means of an equivalent target language text. A translator always risks inadvertently introducing source language words, grammar, or syntax into the target language rendering. I have described, defined, and translated, I should say, I have a work, Kavya Tattva Samanyuti. So where there I have defined the new genres of contemporary Sanskrit literature. So in that work also, I have described and defined the translated literature, that is Anudita Sahityam. Anuditam cha Sahityam vidha swanytamam matam sarvasu cha vidhasveva samaveshosya drusyate. Vidhaschopa vidhaschajaha prantiya rashtriya punaha tascha sarvaha suprajuktaha sahitye nudite साहित्ये नुदिते नवे शब्दश्चानुवादश्चेत् अनुवादो विधीयते सच शब्दानुवादोस्ति सर्वथा अंगीकृतो बुधैः भावानाम् अनुवादे तु भावानुवाद संज्ञकः प्रतिशब्दानुवादस्तु तत्र नापेक्षते क्वचित् ईषत् स्पर्शेण भावानाम् अवलम्बनमुच्यते ईषत् स्पर्शेण भावानाम् अवलम्बनमुच्यते अवलम्बन काव्यं च यथा दारु ब्रह्मास्ति मे वस्तुग्रहण मात्रेण चानुसर्जनमुच्यते अनुसर्जन वस्तुग्रहण मात्रेण चानुसर्जनमुच्यते प्रतिभा कारयित्री च तत्र चापेक्षते सदा अनुवादोऽपि कलास्ति विज्ञानं च क्वचिन् मतं कला विज्ञानयोस्तत्र चापेक्षते सम्मिश्रणम् अभ्यासोऽप्यक्षते नित्यं नैपुण्याय न संशयः अभ्यासोऽप्यक्षते नित्यं नैपुण्याय न संशयः काम्यते ध्ययनं चात्र तोनुसन्धानपूर्वकम् एवं किंचित मया तत्र प्रतिपादितम् अस्ति अनुवाद विषये। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनुवाद एक कला ही नहीं अपितु विज्ञान भी है। अगर अनुवाद कला है तो अनुवादक कलाकार, और अगर अनुवाद विज्ञान है तो अनुवादक एक विज्ञानी। निरंतर अभ्यास, अनुशीलन तथा अध्ययन आदि से इस कार्य में निपुणता, कुशलता हासिल की जा सकती है। अनुवादक के सामने अनुवाद के समय दो भाषाएं होती है और उन दोनों भाषाओं के स्वरूप तथा मूल प्रकृति एवं प्रवृत्ति का गहन अध्ययन, अनुशीलन करना अनुवादक का प्रथम कार्य है। किसी भी परिनिष्ठित अनुवाद में अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सफल अनुवाद के लिए अच्छे अनुवादक चाहिए
अच्छे अनुवादकों के कुछ गुण अवश्य होते हैं। अच्छे अनुवादक को भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अनुवाद विधा का ज्ञान होना चाहिए और भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उन्हें संबंधित विषय का भी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अच्छे अनुवादक के पास स्वतंत्र विचार शक्ति भी होनी चाहिए। साथ ही उनके पास लोकोत्तर मेधा और अलौकिक कौशल भी होना चाहिए। इसी प्रकार एक अच्छे अनुवादक में प्रामाणिकता और मौलिकता के गुण होना अति आवश्यक है। अनुवाद एक अत्यंत कठिन दायित्व है। रचनाकार किसी एक भाषा में सर्जना करता है, जबकि अनुवादक को एक ही समय में दो भिन्न भाषाओं और परिवेश तथा वातावरण को भी साधना होता है। परिवेश और वातावरण पर बल देते हुए राधाकृष्णन ने गीता के अनुवाद के प्रसंग में कहा है, गीता के किसी भी अनुवाद में वह प्रभाव और चारुता नहीं आ सकती जो मूल में है। इसका माधुर्य और शब्दों का जादू किसी भी अन्य माध्यम से ज्यों का त्यों लाभ पाना बहुत कठिन कार्य है। अनुवादक का यत्न विचार को ज्यों को त्यों प्रस्तुत करने का रहता है, परंतु वह शब्दों की आत्मा को पूरी तरह सामने नहीं ला सकता। वह पाठक में उन मनोभावों को नहीं जगा सकता जिसमें कि वह विचार उत्पन्न हुआ था। ये राधाकृष्णन भगवत गीता जो हिंदी राजकमल एंड सन्स की प्रकाशित है, उसकी भूमिका में उन्होंने कहा है। एक अनुवादक के लिए स्थानीय संस्कृति और परिवेश का ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है, सालों पहले एक इतिहासकार वीर कुंवर सिंह पर शोध के प्रसंग में भारत आए थे। उन्होंने एक फाइल में BURHI बुर्ही शब्द देखा, जिस पर कुंवर सिंह ने कभी 1 लाख रुपए खर्च किए थे, ऐसा उल्लेख तत्र मिलता है। उस शब्द को लेकर उस इतिहासकार ने लिखा कि वीर कुंवर सिंह की एक बूढ़ी रखेल थी, जिस पर उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किए थे। BURHI इस शब्द को लेकर कुछ दिनों बाद उसी फाइल को एक बिहारी इतिहासकार ने देखा। वो उसी शब्द को BURHI को बरही ऐसा पढ़ा। उन्होंने लिखा कि कुंवर सिंह ने पोते की बरही पर 1 लाख रुपए खर्च किए थे। यद्यपि ये सब किस्से या किंवदंतियां होती हैं, फिर भी ये गौर करने योग्य तथ्य होते हैं। इसी प्रकार वाल्टर हाउजर द्वारा की गई ऐसी भूलों की, भ्रांतियों की चर्चा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी करते हैं, जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जालहंस की सुभाषित मुक्तावली में उन्होंने एक भारतीय विद्वान की खोज पर व्यंग्य किया। उक्त विद्वान ने अंग्रेजी माध्यम से अर्जित संस्कृत ज्ञान की बल से जलहन को जालहंस बना दिया। जलहन दरअसल रोमन लिपि में जलहंस, जलहन के आगे अपॉस्ट्रोफ एस ऐसा वहां लिखा था, जिन्हें वह जालहंस पढ़ लिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी से कहा, हिंदी में पढ़ लेता हूं, सामान्य तो उसका अर्थ भी समझ लेता हूं, किंतु
शब्दों के साथ जो वातावरण लिपटा होता है उसे मैं नहीं समझ सकता। सच तो यह है कि शब्दों के साथ लिपटे हुए वातावरण का ज्ञान मुझे अपनी भाषा को छोड़कर और किसी भी भाषा में नहीं होता, यहां तक कि अंग्रेजी में भी नहीं। गुरुदेव से बातचीत के उपरांत चतुर्वेद जी ने दिनकर जी से कहा, रविंद्रनाथ स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजी शब्दों के साथ लिपटे हुए वातावरण को वे समझ नहीं पाते हैं। यह एक बात है जिसकी खबर उन सभी भारतीय लेखकों तक पहुंच जानी चाहिए जो अपनी भाषाएं छोड़कर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, विशेषतः कविताएं लिख रहे हैं। वो इसलिए जो दोनों भाषा का मर्म नहीं जानता अच्छा अनुवादक नहीं हो सकता। अर्थ का अनर्थ तो कोई भी कर सकता है, ऐसा बनारस दास ने कहा। शब्द सह अनुवाद करने से अर्थ का अनर्थ ज्यादा ही रहता है। हर भाषा की अपनी एक खास प्रकृति या प्रवृत्ति होती है, इसलिए जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे होते हैं उसकी प्रकृति और इसके मिजाज, उसका संरक्षण आवश्यक हो जाता है। शब्द संस्कृति के वाहक होते हैं। संस्कृति परिवर्तित होने से शब्द, वाक्यांश तथा मुहावरों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दीपक तले अंधेरा, ये कहावत है, हिंदी में प्रसिद्ध है और अन्य भाषाओं में इसका ग्रहण किया गया है। कन्नड़ और कश्मीरी भाषा में भी इसका प्रयोग देखा जाता है। चरित्रवान आदमी का वो दीपक की तरह वो चरित्रवान आदमी का भी दीपक की तरह अंधेरा पक्ष भी होता है। चाहे कितना भी चरित्रवान और उदात्त पुरुष क्यों न हो, उसका भी दिया के नीचे से अंधेरा होता है, वैसा अंधेरा पक्ष उसका भी होता है। अर्थात कुछ प्रच्छन्न बुराइयां उसमें भी होती है, ये कहने का तात्पर्य है। तो कश्मीरी में अच्छे राजा के बुरे अनुचर हो सकते हैं, इस अर्थ में इसका प्रयोग देखा गया है। वस्तुतः शब्दों और वाक्यांशों का अनुवाद अपने देश, प्रदेश और भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार ही होना चाहिए। अंग्रेजी में जैसे वार्म रिसेप्शन, ये शब्द इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि इंग्लैंड जैसे देशों में, ठंडे देशों में इसकी आवश्यकता थी, पर भारत जैसे समतापमान वाले देशों में इसे हृदय को शीतल करना कहा जा सकता है। इसलिए अनुवादक को एक ही समय में स्रोत भाषा जो सोर्स लैंग्वेज और लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज, दोनों की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनुवाद करना चाहिए। शब्दशः अनुवाद कठिन है, जैसा कि हमने अभी बताया, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती है। एक भाषा के शब्द को हूबहू दूसरी भाषा में अनुवाद करना कठिन इसलिए होता है कि ऐसे हूबहू अर्थ देने वाला शब्द मिलते नहीं है दूसरी भाषा में। कई बार शब्द महज शब्द नहीं होते हैं, उनके साथ एक अवधारणा भी जुड़ी हुई रहती है। उन अवधारणाओं का अनुवाद किसी भी विदेशी भाषा में, जहां वैसी किसी अवधारणा का करना उस सीमा की मर्यादा समझनी होगी
नहीं तो ऐसा क्यों आवश्यक पड़ा कि जैसे अंग्रेजी आदि शब्दकोश में स्वदेशी, सत्याग्रह, अहिंसा ज्यों का त्यों आवाजात व्यत्यय येतोय का सर? हा सर, त्यांचा आवाज बंद झालाय, मला येत नाही आता आवाज त्यांचा. त्यांना फोन करायला लागेल ना? हा, फोन करावा लागेल. बंद झाला आवाज. ते बहुतेक लेफ्ट झालेत का काय असं मला वाटतंय, कारण अचानक त्यांचं सिग्नल वीक झाला आणि लेफ्ट झाले मला वाटतंय. ते त्यांना फोन करावा लागेल. आहेत ते. अभी आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। सर। बीच में बंद हुई थी। वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो बैक हो गया, फिर ठीक है। अपने आप म्यूट हो गया। ठीक है, अब भी आ रहा है सर। हाँ, अभी आ रहा है। हिंदी में भी ठीक है, अंग्रेजी की तरह अनगिनत शब्द हूबहू लिए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज भी हम उस बहस से मुक्त नहीं हो पाए हैं कि सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता या धर्म और रिलीजन कोई एक ही चीज है या भिन्न है। अब ये कहना अभी कठिन है। यह समस्या तब और विकट होती है जब हम बोली के संवाद जब उसी देश की भाषा में असंभव है, तो विदेशी भाषाओं में ऐसा कैसे किया जा सकता है। वेदों का अनुवाद आज की संस्कृत भाषा के प्रचलित शब्दार्थों के सहारे नहीं हो सकता है। ठीक जैसे शेक्सपियर के जमाने के अंग्रेजी का अनुवाद आज के प्रचलित शब्दों और अर्थों के सहारे करना कठिन है। निरुक्तकार यास्क ने भी वेद से लगभग 400 ऐसे शब्द गिनाए हैं जिनके अर्थ उन्हें भी मालूम नहीं था। लगभग 400 शब्द थे जिनका पता उन्हें ज्ञात नहीं था। उन्होंने उन शब्दों की एक सूची भी बनाई है। इसलिए एक अच्छे अनुवादक से उम्मीद की जाती है कि भाषा की समझ के साथ उसका इतिहास बोध भी वो विकसित करे। प्रत्येक विषय की अपनी भाषा होती है और उसके खास पारिभाषिक शब्द भी होते हैं जिनकी सूक्ष्मता से पता लगाना उस विषय के जानकार ही कर सकता है। इसलिए अनुवाद की आदर्श स्थिति यह है कि कविता का अनुवाद कोई कवि करे और कहानी का अनुवाद कोई कहानीकार करे और अन्य विज्ञान आदि ग्रंथों का अनुवाद कोई तत्त विज्ञानों के ज्ञाता करे, तो उसमें सटीक अनुवाद हो सकता है और हम उस विषय के साथ न्याय कर पाते हैं। अनुवाद की एक समस्या श्रेष्ठता बोध और हीनता बोध भी माना जाता है। हम किसी भाषा को श्रेष्ठ मान लेते हैं तो किसी भाषा को हीन मान लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, गीता के दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ लेखक भी पारसी धर्म का हाल लिखते समय जरथुस्त को जरथुस्ता और अहुर मजद को अहुरा मजदा लिख देता है। कहने का मतलब है कि जो संस्कृत के गीता और दर्शन शास्त्र को ठीक से पढ़ चुका है और ज्ञाता है, वो भी अन्य भाषा के शब्दों को
पढ़ते समय और अनुवाद करते समय गलती कर सकता है, ये तात्पर्य है। नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन भाषा के औपन्यासिक हार्मान हेस कहते हैं, या हरमान हेस ऐसा उच्चारण होगा उनका, वो कहते हैं शब्द पूर्ण सत्य को व्यक्त करने में असमर्थ है। पूर्ण सत्य तो अनुभूति का विषय है, प्रज्ञा का संक्रमण सर्वथा असंभव है। यदि कोई विज्ञजन अपनी प्रज्ञा को किसी और को वितरित करना चाहे तो वो विज्ञ नहीं अज्ञानी है, ऐसा कर सकते। अतः क्रांतिदर्शी ऋषियों ने जो देखा उन्हें केवल शब्दों में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थ बोधभ्य अयम शब्दः अमुम अर्थम बोधयतु। इस प्रकार ईश्वरेच्छा संकल्प से द्योतित होता है कि संपूर्ण मानवीय वाङ्मय अनुवादात्मक है। संपूर्ण काव्य संसार भी पूर्व सूर्यों के प्रभाव से प्रभावित है। वही बात टी.एस. एलियट अपनी शैली में इस प्रकार कहते हैं, नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन। हिज सिग्निफिकेंस, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone. You must see him, set him for contrast amongst the dead. When a new work of art is created, is something that happens simultaneously to all works of art which precede it. मानवों का जो चतुष्षष्टि कलात्मक समस्त शिल्प है वो भी अनुवादात्मक ही है। इसी तथ्य को खेमेंद्र ने कुछ इस प्रकार प्रतिपादित किया है, नास्त्य चौरो मणिक जनो नास्ति अचौरः कविजनः, नास्ति अचौरः वणिक जनः नास्ति अचौरः कविजनः इति। शास्त्रों में अनुवाद शब्द का अर्थ पुनः कथन माना गया है। अनुपश्चात वदति इति अनुवादः। वस्तुतः मूल का भाषांतर से पुनः स्थापन ही अनुवाद शब्द से अभिप्रेत है। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया है, ट्रांसलेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ ए सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट बाय मींस ऑफ एन इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट। ये हमने शुरू में बताया था। यद्यपि पाश्चात्यों के मत में भाषांतर मात्र ही अनुवाद शब्द से बोध होता है, तथापि वैदिक काल से आज तक संस्कृत परंपरा में अनुवाद की एक भव्य परंपरा रही है। उसके लिए रूप प्रतिरूप, बिंब प्रतिबिंब, आभास आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। वस्तुतः शास्त्रों के भाष्य, वार्तिक, टीका, पंजिका, चूर्णिका, दीपिका, समीक्षा, सारसंग्रह इत्यादि जितने टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, वो सब प्रमुखतः एक प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया ही है। कालिदास ने तो शुक के अनुकरण को भी अनुवाद के रूप में स्वीकार किया है। ध्वनिकार आनंदवर्धन और लोचन टीकाकार अभिनव गुप्त ने तो वाच्यार्थ के विविध निरूपण प्रकार को अनुवाद के रूप में निरूपित किया है। अब संस्कृत में अनुवाद परंपरा के बारे में कुछ आलोचना करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता एवं उपनिषद आदि के अनेक अनुवाद हुए हैं, जिसकी सूची मुझे यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। कोलकाता में गवर्नर पद में नियुक्त वारेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से प्रेरित चार्ल्स विकिल्स पहले वाराणसी में रह करके संस्कृत पढ़े और फिर 1785 में उन्होंने गीता का अनुवाद भी किया। दारा सिकोह सर्वप्रथम सीर ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद किया है। उन्हीं का अनुसरण करते हुए एंकेटी बदुपरो
उन उपनिषदों का फ्रेंच भाषा में अनुवाद करके वर्ष 1801-1802 में पेरिस से प्रकाशित कराया। 1808 में रिक्शनर ने उन्हें जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया। शोपेनहर, सेलिंग, इमर्सन, थारो आदि उस समय के पाश्चात्य दार्शनिक इन अनुवादों से प्रभावित होकर भारत के महत्व को स्वीकार किया है। शोपेनहर ने इस प्रसंग में घोषणा की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, there is no other book in the whole world the reading of which is as rewarding and solemn as that of this book. It has comforted me in my life and it will also comfort me while dying. ये विंटरनेज की हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में उद्धृत है। ईसा पूर्व द्वितीय शतक से तृतीय ईस्वी तक इसके बीच में पंचतंत्र की रचना हुई ऐसा माना जाता है। पंचतंत्र के आज तक के नवीनतम संस्करणों में मूल रूप से 5 महाकथाओं और उसके साथ साथ 58 उपकथाएं और जिनमें 1013 श्लोक भी अनुच्छेद है। बीच बीच में आप देखेंगे कुछ पद्य आपको मिलते हैं। मूल पंचतंत्र का प्रथम अनुवाद पहलवी भाषा में हुआ जो 6ठ शतक के प्रथमार्ध में हुआ है ऐसा इतिहासकार मानते हैं, किंतु मूल के साथ वह अनुवाद भी विलुप्त हो गया। जिन्हें लिखित रूप से और कथित रूप से उत्तर तिब्बत, चीन आदि देशों तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तीर्थ यात्रा के समय बौद्ध भिक्षुओं ने प्राप्त किया। इस प्रकार दक्षिण पूर्व देशों में तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जावा, लाओ आदि देशों में इसका प्रचार हुआ पंचतंत्र का। तत्पश्चात 1199 ख्रीष्टाब्द में जीनपति सूर्य के शिष्य श्वेतांबर जैन भिक्षु पूर्णभद्र 21 नई कथाओं को उसमें जोड़ करके एक नया संस्करण प्रकाशित किया पंचाख्यानक नाम से। इससे पहले तंत्राख्यायिका नाम से दूसरा भी संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसके बाद एक दक्षिण भारतीय संस्करण भी प्रकाशित हुआ। इस समय पंचतंत्र का 60 भाषाओं में 250 से भी अधिक अनुवाद उपलब्ध है। यही नहीं, जैसे ईसप कथाओं में अरबियन नाइट्स जो आरब्य रजनी कथा हम कहते हैं और सिंधवाद कथाओं में तथा 30 से 40 या 50% तक कह सकते हैं जो राइम्स है, जो बालाड है, संगीत मूल कथा, उनमें भी पंचतंत्र या फिर जातक कथाओं का मूल है ऐसा अनुमान किया जाता है। प्रायः 570 ईस्वी तक आधुनिक यूरोपीय अनुवादों के पूर्व पंचतंत्र मुख्यतया अरबीय अनुवाद से अनुदित होता था। पुनः 10वीं-11वीं शतकों के मध्य पंचतंत्र सीरिया भाषा में अनुदित हुआ जो तंत्राख्यायिका के नाम से के सामीप्य है। बड़ नामक पुरोहित ने पहलवी भाषा से कलिलह और दिलनह नाम से सीरिया भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद किया, जिसकी एक कृति असुरक्षित अवस्था में 1870 ईस्वी में आविष्कृत हुआ। इसी प्रकार 750 ईस्वी में अरबिक भाषा में अब्दुल इबान अल-मुकाफा ने कलिलह और दिलनह नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया। वस्तुतः ये दो कलिलह और दिलनह ये दोनों चरित्र पंचतंत्र के करटक और दमनक है, यही है। 1787 ईस्वी में चार्ल्स विल्किस ने संस्कृत हितोपदेश का अनुवाद किया। मध्ययुगीन यूरोप में सामान्यतया यह अनुवाद विदपाई कथा, द फेबल्स ऑफ विदपाई नाम से प्रसिद्ध है। तृतीय पर्याय का आरंभ होता है अनुवाद का सर विलियम जोन्स से।
उन्होंने संस्कृत शिक्षण, अनुवाद एवं अभ्यास आदि के संदर्भ में हितोपदेश का उल्लेख किया है। हितोपदेश के तुर्कीय संस्करण से वह परिचित थे। उस समय यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में भी मिलता था। 1786 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी के वार्षिक सत्र में उन्होंने पंचतंत्र का तथा अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया था, जो उन्हें 1784 ईस्वी में मिला था। सर विलियम जोन्स ने भी हितोपदेश का अनुवाद स्वयं भी किया है। 2011 में भी राम सेबिडू जी ने, एक आंध्र प्रदेश के रहे हैं एक विद्वान, जिन्होंने कालिलीह और दिमन्ना, कालिला और दिमन्ना, इस ग्रंथ का संकलन किया। ईस्वी 5वीं शतक में पैशाची भाषा में गुणाढ्य द्वारा लिखित बड्ड कहा प्रसिद्ध हुआ, जिससे उसका 4 संस्कृत अनुवाद, एक प्राकृत अनुवाद और एक तमिल अनुवाद भी हुआ। पैशाची भाषा में प्रचार न हो पाने के कारण और अनुवाद शैली के प्रभाव के कारण, मतलब संस्कृत के जो अनुवाद शैली उसके प्रभाव के कारण संस्कृत अनुवाद इतना प्रसिद्ध हुआ जिससे मूल ग्रंथ भी विलुप्त हो गया। जो बड्ड कहा पैशाची भाषा में था वो विलुप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि अन्य भाषा से यह प्रथमतः संस्कृत अनुवाद है। संस्कृत से अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ, लेकिन अन्य भाषाओं से संस्कृत में अनुवाद होने का बड्ड कहा को पहला अनुवाद मानते हैं इतिहासकार। इस पर अधिक शोध की भी अपेक्षा है। सर विलियम जोन्स अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवाद है वो मूल कारण है कि पाश्चात्य रंगमंच में उस संस्कृत नाटक की इतनी सफलता मिली। उसी प्रकार मेघदूत का अनेक अनुवाद हुए हैं। आज तक केवल बंग भाषा में इसका 84 अनुवाद मिलते हैं, ऐसा डॉक्टर नारायण दास ने खोज करके अपने एक लेख में लिखा है। हिलब्रांट ने मेघदूत के आंग्ल अनुवाद का भूरी प्रशंसा की है। मेघदूत के माध्यम से उन्होंने ही सर्वप्रथम कालिदास की भारतीयता को जाना एवं पहचाना। वस्तुतः कालिदास मेघदूत ही भारतीयता का प्रकृष्ट उदाहरण है। विद्वानों का मानना है कि एक और इसमें भारत का भूगोल है तो दूसरी ओर तीर्थ भी है और पावन भाव भी है। इसमें प्रेम की अनन्यता और निष्ठा भी है और प्रकृति से एकाकार होने का प्रभुत्व अवसर है। यही कारण है मेघदूत का इतना अनुवाद आज मिलते हैं। इसमें जीवन की लय और संगति भी है। मेघदूत विश्व को भारत के जीवन बोध की एक उत्कृष्ट देन है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर कालिदास के, विशेषकर मेघदूत के अंध प्रशंसक रहे हैं। मेघदूत को अवलंबन करके उन्होंने शताधिक कविताएं और कुछ कथाएं भी लिखी हैं, जिनसे कालिदास की भावना और प्रत्यग्रीकृत है। इससे ज्ञात होता है कि संस्कृत में पूर्व काल से ही सुप्रसिद्ध अनुवाद परंपरा रही है, जो नवजागरण काल, जिसे हम 20वीं शताब्दी मानते हैं, नवजागरण काल, वो नवजागरण काल में वो पराकाष्ठा को प्राप्त हुई। कश्मीर राज जैनुलब्दीन तथा मुगल राज अकबर के समय अनेक संस्कृत ग्रंथ पारसी भाषा में अनुदित हुए। अन्य भाषाओं से अनुवाद के प्रसंग में बाइबल का अनुवाद भी उल्लेख्य है, जिसका 14 भाषाओं में अनुवाद हुए। इसी प्रकार कुरान का भी कई अनुवाद हुए हैं। पर मेरा मानना है कि अनुवाद के प्रसंग में संस्कृत शास्त्रों और काव्यों के जो अद्भुत अनुवाद हुए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे जितना बोलना चाहिए हम करीब बोल दिए हैं। और भी कार्यक्रम है और भी वक्ता हैं, हमें अध्यक्ष जी को भी सुनना है। इसलिए
अधिक और नहीं न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और 2 दिन तक ये संगोष्ठी चलेगी, उसमें और अनेक विचार होंगे प्रत्येक विधाओं पर, जैसे वेद, उपनिषद और दर्शन आदि ग्रंथों के क्या अनुवाद हुए हैं और उसमें क्या समस्याएं हैं, ये सब पर विचार आगे होगी। और मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने का और सुनने का। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवादाः। समग्रमपि संस्कृत साहित्यानुवाद वैभवं यथा कालम् अस्माकं पुरस्तात् उपस्थाप्य अस्मान् अनुग्रहीतवन्तः अद्यतन कार्यक्रमस्य उद्घाटन सत्रस्य बीजभाषणकर्तारः तेषां कृते तत्र सर्वेषां पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। वस्तुतः प्राप्तस्य पुनः कथनम् अनुवादः इति उच्यते, किन्तु अनुवादः इति तत्तु अत्यन्तं संकुचितं भवति। तादृशम् अर्थं यदि स्वीकुर्मः, अनुवादस्य उदात्तं महनीयं च रूपं कीदृशं स्यात् इति स्ववचोभिः अत्र अस्माकं पुरस्तात् उपस्थाप्य उत्तमः अनुवादः कीदृशः स्यात्, अनुवादकः कीदृशः स्यात्, तदर्थं किं कर्तव्यं, कीदृशः यत्नः विधेयः इति एवं सर्वमपि उद्बोधितवद्भ्यः आचार्येभ्यः डॉक्टर बनमाली विस्वाल महोदयेभ्यः प्रणामां पुरस्सरं धन्यवादं वितनोमि। एवं च बीजभाषा Professor Banmali Biswal ji, the keynote speaker of the day, राष्ट्रीय वेबिनारे अस्मिन् बनमाली बिस्वाल महोदयैः नानाभाषाः समाश्रित्य संस्कृतेन कदाचित् हिन्द्या आङ्ग्लेन वा बहुभिः भाषाभिः स्वमनोगतं प्रकटीकृतम्। Professor Banmali Biswal, the keynote addressee. I thank Professor Banmali Biswal for an enriching keynote address where he actually started taking the review of the translation of Sanskrit literature by informing us about the multiplicity of translations from Sanskrit to various Indian and foreign languages. I thank you, Professor Biswal, for the same. In the president, बनमाली जी, बहुत ही सुंदर हुआ, हम कृतार्थ हो गए, कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हुआ।